Friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Capricorn Ascendant people. Let us first look at the Ascendant Lord. Ascendant Lord Saturn is now going to be stationed in the first house for Capricorn Ascendant people till January 2023. This Saturn going through the first house always provides opportunities to people in the form of challenges, and all those people who work with the mindset to overcome these challenges, Saturn rewards them with personality and skill development that leads to material rewards in the longer run. Saturn is going to remain in opposition with Sun till 16th of August, and this is going to create conflicts with your spouse or your business partners. It is advised to avoid getting into fights with them. Sun passing through the seventh house would mean that your spouse or partner will go on an ego trip and you will remain humble due to Saturn's presence in the first house. Now, Sun and Saturn are staunch enemies, and a conservative approach will help you to avoid any potential conflicts during this point of time. Capricorn ascendant people, anyways, work extremely hard because Saturn sign is posited in the first house. But Saturn's presence in the first house naturally means that they will have to work very long hours compared to other ascendants. And overall, this traits helps them in the longer run. People of Capricorn ascendant are extremely ambitious, and those with the willingness to burn midnight oil are rewarded very well in the longer run. The presence of Saturn in the first house would mean that the aspect will fall on the third house, seventh house, as well as 10th house. Third house is the house of efforts, so you will have to increase your efforts manyfold, and this 10th aspect of Saturn on your workplace is going to bring many more challenges at the workplace during its whole stay. So till January 2023, the Capricorn ascendant people will have to toil really hard at the workplace. Their efforts needs to increase manifold and they need to move ahead with a lot of determination because Saturn in the first house also make people feel alone and isolated. So overall, this will be a challenging time frame for the Capricorn ascendant people, and only those who overcome it will be rewarded. Now let us also look at other planets one by one. Mercury is stationed in the 8th house in the month of August. For Capricorn ascendant people, Mercury is the owner of 6th and the 9th house. Mercury stationed in the 8th house would mean that you need to focus more on your health during this time frame and try to maintain a strict routine, eat and sleep on time. People who are in jobs will find success in their profession, especially if their job is related to the significations of the eighth house. So, people who are involved in research, insurance, taxation, and technology related job will find this month to be very good on the job front, especially the dates where they will find success at the work front are 7th, 8th, and 9th of August, 15th, 16th, and 17th of August, and 24th and 25th of August. These 8 dates are going to be extremely fruitful on finding success on the job front. Let us also look at Venus. Venus happens to be the 10th house and 5th house lord for the Capricorn ascendant people. The 5th house lord Venus passing through the 7th house would mean that you will find success in love affairs during this time frame. There is going to be an exchange of Moon and Venus in the month of August between 21st to 23rd of August. So 5th house lord and 7th house lord exchanging signs is a straightforward indicator of a love marriage or proposing to someone and finding success in the same. Venus is also the lord of 10th house, and this 10th house lord stationed in the 7th house means that people who are running businesses that are related to Venus. So, all those people who are involved in the businesses related to cosmetics, luxury items, clothing, fashion items, vehicles will find this month to be extremely good for business. People who are interested in speculation will also find the month of August to be very good, especially at the beginning of month, so 2nd and 3rd August, as well as from 18th to 22nd of August. So these days will be fruitful for people who want to take
their chances in the field of speculation. Let us also look at Rahu. Rahu is transitioning through the fourth house, and whenever Rahu transitions through fourth house, peace of mind of an individual gets dismantled, as well as domestic harmony gets impacted. People who are planning to buy property should avoid this till the time Rahu is transitioning from the fourth house. So, November 2023, this is the time frame where one should avoid buying any kind of a property, because Rahu passing through here will make sure that some kind of a unexpected problem will arise, whether it arises due to some kind of a fraud or due to some other factor that you are not able to imagine at this point of time will arise. And that is why buying a property should be shunned till November 23. Let us also look at Mars. Mars is aspecting its own house of 11th house, and this would mean that you will gain from your investment made through speculation, as well as other significations that are indicated by fifth house. So you will also be able to gain from education and making use of your creative skills and intellect, because fifth house is indicator of all these things. Mars is also going to aspect the 12th house through its eighth aspect, and is creating chances for you to visit foreign places in the month of August. Let us also look at Jupiter. Jupiter is transitioning through the third house, and it is going to aspect the seventh house through its fifth aspect. So, all those people who are unmarried will have a very good chance to get married till the time Jupiter is transitioning through the third house. So, till April 23, Jupiter is going to bless the Capricorn ascendant people with its fifth aspect on the seventh house. So this will not only create chances for getting married, but this is also going to protect people who are running their businesses. And the people who want to start a new business, they will also have Jupiter's blessing during this time frame till April 23. Jupiter is also going to aspect the ninth house of religion and higher learning through its seventh aspect. And as a result, people who are pursuing higher learning, all those people who are completing post graduation or their doctoral thesis, is going to have a tremendous support of Jupiter through its seventh aspect, and this support is going to remain till April 23, which will help them to obtain their degrees or thesis with flying colors. Now, there are also certain dates when a person needs to be very cautious. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for Capricorn ascendant people, these dates in the month of August are 9th to 10th of August, 22nd to 23rd August, and 27th to 28th August. In total, 6 days where you need to be very careful and avoid taking any crucial decision. Overall, this month of August will be exciting for Capricorn ascendant people, especially because of the fifth and seventh house lord interchange, as well as the placement of 10th house lord in the seventh house, which is going to create a lot of opportunities at the work front, especially if you have your own business. Even for service related jobs or professions, this is going to be an exciting time. So, overall, this is the summary for Capricorn ascendant people for the month of August. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मकर लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश पे नज़र डालते हैं। मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश शनि स्वयं होते हैं, और ये अभी प्रथम भाव में ही वापस से आकर विराजमान हो गए हैं। शनि यहाँ पर जनवरी 2023 तक बैठे रहेंगे। जब भी कभी शनि प्रथम भाव से गुजरते हैं तो यह व्यक्ति के लिए हमेशा एक चैलेंजिंग समय होता है, क्योंकि शनि जहाँ से भी गुजरता है वहाँ की चीज़ों को वो मेहनत के थ्रू डेवलप करने की मांग करता है। यहाँ पर व्यक्ति को प्रथम भाव में स्वयं की पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, आपके विचारों पर आपको ध्यान देना होगा, और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय है। तो जितने भी लोग मकर लग्न के हैं उनके लिए शनि प्रथम भाव से गुजरेगा, और वो उनके लिए मौके बनाएगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा वर्क फ्रंट पे। सोशल सेक्टर में डीलिंग करते हैं आप लोगों से, तो उनके साथ, और आपको जो भी जितने भी लोग यहाँ पर चैलेंजेस को उठा लेंगे और उनको ओवरकम करने का प्रयत्न करेंगे,
तो शनि उनको रिवॉर्ड करेगा लॉन्गर रन में। अब ये मटेरियल गेन्स भी हो सकते हैं, या आपका ऐसा स्किल सेट डेवलप करने का मौका हो सकता है जो कि आपको लंबे समय में और लोगों से अलग जगह पे जाके बिठा दे। तो शनि यहाँ पर हमेशा व्यक्ति को इम्प्रूव करने के मौके देता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी बाकी लग्न के लोगों के मुकाबले में। जितने भी लोग मेहनत करने से कतराएंगे तो शनि का डंडा उनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी मकर लग्न के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि शनि की पृथ्वी तत्व प्रैक्टिकल राशि पड़ती है प्रथम भाव में, तो ऐसे लोग बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा व्यक्ति मेहनत करता है उतना ही शनि उसको रिवॉर्ड करता जाता है। यहाँ पर शनि की सूर्य के साथ प्रतियुति बनेगी 16 अगस्त तक। तो जितने भी लोग शादीशुदा हैं उनको इस समय में बहुत सावधान रहना चाहिए। शनि और सूर्य आपस में कट्टर दुश्मन हैं, और जब भी इनका इस तरह का एस्पेक्ट पड़ता है व्यक्ति को उन भाव से रिलेटेड चीजों में हमेशा समस्या आती है। तो आपके पति या पत्नी या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद होंगे 16 अगस्त तक। मकर लग्न वालों के लिए वैसे भी सप्तम भाव में चतुर्थ साइन पड़ता है, यानी कि कैंसर साइन पड़ता है, जो कि एक जल राशि है। तो पति पत्नी बहुत ज्यादा इमोशनल स्वभाव के इनको मिल मिल जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से भी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो की है वो ये है कि शनि आपको हम्बल बनाएगा प्रथम भाव में, लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ पति या पत्नी का सूर्य उनकी ईगो बूस्ट करेगा। इसीलिए आप किसी तरह के ईगो क्लैशेस में मत पड़िए, आप अपनी तरफ से सावधानी बरतिए और किसी भी तरह के विवाद को टालिए, नहीं तो ये विवाद बहुत लंबा जाएगा। प्रथम भाव में आया हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे डालेगा, जो कि मेहनत या एफर्ट का हाउस है। सप्तम भाव का तो हमने देख ही लिया, और दशम भाव से वो आपके कार्यस्थल को भी देखेगा। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका कार्यस्थल पे आपको आसानी रहेगी। इस शनि की 10वीं दृष्टि यानी कि आपके वर्क प्लेस पर तो चैलेंजेस क्रिएट होंगे, अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी अच्छे से या सुगमता से ओवरकम कर सकते हैं। एक एक दृष्टि बाकी ग्रहों पर भी डालते हैं। बुध को देखते हैं। बुध अभी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। छठवें भाव का स्वामी होता है ये मकर लग्न वालों के लिए। छठवें भाव का स्वामी आठवें भाव से जाना, यानी कि आपको आपकी हेल्थ के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है अगस्त के महीने में। आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए, समय पर खाइए पिए और सोइए, तो आपके लिए ये समय फिर भी थोड़ा ठीक गुजरेगा। जितने भी लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। प्रोफेशन अगर उनके रिलेटेड हैं आठवें भाव से जुड़े हुए, यानी कि अगर आप रिसर्च में हैं, इंश्योरेंस में हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जॉब्स में हैं, सीबीआई या आईबी वगैरह से जुड़े हुए कामों में जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनसे जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप जॉब्स में हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। जो सबसे बेस्ट डेट्स हैं अगस्त के महीने में सर्विस से रिलेटेड चीज़ों के लिए, वो हैं 7, 8 और 9 अगस्त, और 15, 16 और 17 अगस्त। ये 6 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप जॉब में हैं तो, और अगर आपका जॉब अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों से ही है तो। एक नज़र शुक्र पे डालते हैं। शुक्र मकर लग्न वालों के लिए दशम भाव का भी मालिक होता है और पंचम भाव का भी मालिक होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, योग कारक ग्रह कहलाता है ये मकर लग्न वालों के लिए। और ये अभी सप्तम भाव से गुजरेगा। इस महीने में 21 से 23 अगस्त के बीच में पंचम और सप्तम भाव का आपस में एक्सचेंज होगा, जो कि बहुत अच्छा योग है। तो चंद्र और शुक्र अपनी पोजीशन बदलेंगे। चंद्र पंचम भाव में बैठा होगा और शुक्र सप्तम भाव में बैठा होगा, एक दूसरे के साइंस में। तो पंचम और सप्तम भाव का आपस में एक्सचेंज होना ग्रहों का सीधा सीधा दिखाता है लव मैरिज की तरफ, या फिर ऐसे किसी भी संबंध की तरफ जो कि प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप किसी को इस समय में प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। 21 से 23 अगस्त के बीच में अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे मौके रहेंगे। शुक्र दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो मकर लग्न के जितने भी लोग शुक्र से रिलेटेड व्यवसाय में एंगेज्ड हैं, यानी कॉस्मेटिक्स में हैं, लग्जरी आइटम्स से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, क्लोथिंग फैशन या व्हीकल से जुड़ा हुआ भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस के लिहाज से। जितने भी लोग स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। तो जो बहुत अच्छे दिन हैं स्पेक्यूलेशन के लिहाज से वो हैं 2 और 3 अगस्त, और 17 से लेके 20 अगस्त। ये दिन स्पेक्यूलेशन के लिहाज से अच्छे कहे जा सकते हैं।
ओवरऑल अगर आप वर्क फ्रंट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा समय है, चाहे आप सर्विस से जुड़े हों या आप बिजनेस से जुड़े हों। एक नज़र राहु पे भी डालते हैं। राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव से भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु बैठा होता है उनको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती है। राहु यहाँ पे हमेशा व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ उपद्रव बचाने का काम करता रहता है, और यहाँ पे वो उनके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी हमेशा अशांति बनाए रखता है। यहाँ पर राहु गोचर से भ्रमण कर रहा है, इसीलिए वो उस तरह के परिणाम दिखाएगा नवंबर 2023 तक। आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी चाहे आप कितना भी प्रयत्न करें, और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। राहु के जितने भी सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो अननोन किस्म के होते हैं, यानी जब भी राहु समस्या लाता है तो ऐसे जगह से लेके आता है जिसके बारे में लोगों ने उम्मीद ही नहीं किया हो या सोचा ही ना हो। अनएक्सपेक्टेड जगहों से ट्रबल लाना राहु का काम होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का काम करते हैं तो उसमें भी छिद्र लगाने का काम करेगा। राहु से जुड़ी हुई चीजों से आपको इस समय बचना चाहिए चतुर्थ भाव में। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो नवंबर 2023 तक, जब तक राहु यहाँ बैठा हुआ है, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप तब भी प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड फ्रॉड होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में। अब वो चाहे प्रॉपर्टी ही किसी और की हो या फर्जी कागज हो, वो पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि राहु किस तरीके से आपके कार्य में छिद्र करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर सजेशन यही होगा मेरा कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से तो बचें इस समय में। एक नज़र मंगल पे डालते हैं। मंगल 5वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ से मंगल अपने ही भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, यानी कि 11वें भाव को, जो कि आपके गेन्स का भाव है, सोशल नेटवर्किंग का भी भाव है। तो अगेन यहाँ पे आप देखिए कि मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है पंचम भाव से जुड़ी हुई किसी भी चीज से। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अगर आप स्पेक्यूलेशन में हैं या आप एजुकेशन के काम में हैं, या फिर पंचम भाव से आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, कलात्मक क्षमता, तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा ये। और आपको उन सारी चीज़ों से गेन होने की बहुत अच्छी संभावना है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि 12वें स्थान पर भी डालेगा। 12वां स्थान आपके फॉरेन को दिखाता है, कि इन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी दिखाता है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे आपके लिए फॉरेन जाने का योग क्रिएट करती रहेगी अगस्त के महीने में। एक नज़र गुरु पे डालते हैं। गुरु तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ से जाता हुआ गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो जितने भी लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि उनको शादी का मौका मिल जाए, क्योंकि गुरु यहाँ पे अप्रैल 2023 तक बैठे रहेंगे। तो ये मौका आपके लिए अप्रैल 2023 तक रहेगा। बाकी आपकी स्वयं की भी महादशा अंतरदशा भी डिसाइड करेगी, लेकिन गोचर में तो आपको अनमैरिड लोगों की शादी होने की परमिशन मिलती हुई दिख रही है। गुरु यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को भी देखेंगे। तो 9वां भाव आपका हायर लर्निंग का भाव होता है, रिलीजन का भाव होता है। तो जितने भी लोग अपनी हायर डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, उनके लिए अप्रैल 2023 तक बहुत अच्छा समय रहेगा। और ये लोग अपनी एजुकेशन लाइन में काफी सक्सेसफुल समय देखेंगे अप्रैल 2023 तक। अब महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये दिन वो होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8, 12 स्थानों से गुजरता है। इस समय आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे समय में जब चंद्र 6, 8, 12 से गुजरता है तो व्यक्ति के लिए हुए निर्णय भी गलत हो जाते हैं। तो अगस्त में ये दिन है 9 से 10 अगस्त, 22 से 23 अगस्त, 27 और 28 अगस्त। इन 6 दिनों में आप सावधान रहिए। ओवरऑल आप अगर अगस्त का महीना देखेंगे तो मकर लग्न वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। चैलेंजिंग समय है, लेकिन जो भी चैलेंजेस को उठाएगा वही सक्सेसफुल होगा। चाहे आप सर्विस में हो चाहे आप बिजनेस में हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके लिए नए मौके बनेंगे। तो ये ओवरऑल आपका समरी है मकर लग्न वालों के लिए अगस्त के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।